Hello friends, a very warm welcome to all of you. Welcome to Ansarkari, your own uncomplicated channel. As always, idea is to convey you certain brainstorming points ताकि आप सोच सकें कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है. I am Vikas Bhardwaj. Today we are taking up another very important topic. Why is the position of governor so controversial in Indian political system? So the two keywords, position of governor and Indian political system. The question arises, is the position really controversial या फिर समय के साथ controversial बन गई है? और Indian political system has created such a position which actually becomes controversial because there are not enough, you can say, safeguards within the constitution and its application. So we all are aware of the fact that it is the article 356 of the constitution जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ताकि प्रेसिडेंट्स रूल या फिर गवर्नर रूल उस स्टेट में लगाए जा सके. बट ऐसा कब होगा? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन इज नॉट एक्चुअली समथिंग लाइक a very mechanical concept. That is why it is said that it is known that it is misused since 1950s. 1954 में पहली बार और उसके बाद between 1966 and 1977 the Prime Minister of India it imposed president rule 39 times in different states. 39. आप impunity सोचिए, आप ब्रेजन एटीट्यूड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सोचिए. आज हम क्या बात करते हैं? देयर इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देयर इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फिस्कल फेडरलिज्म, देयर इज सेंटर स्टेट रिलेशन बेस्ड ऑन कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन बोथ ऑफ देम. लेकिन क्या ये एक दिन में इवॉल्व हो गया? और उसमें गवर्नर का रोल क्या है? गवर्नर इज द लिंचपिन इन सर्टेन वेज. लिंचपिन यानी कि वो उस बॉम्ब के पिन की तरह है जिसको अगर ठीक से हटाया जाए तो ही वो पॉजिटिवली ब्लास्ट कर सकता है. दैट्स व्हाट वी कैन से इफ वी टेक सच एन एग्जांपल. सो व्हेन जनता पार्टी केम टू पावर आफ्टर इमरजेंसी रूल imposed by Indira Gandhi ji, then also you can say it went on to impose president rule in 9 states which were ruled by the Congress. ये तो पिछले कुछ डिकेड्स में डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स बंद हुआ है. लेकिन स्टिल देर आर मोर मैन्यूवरिंग्स, देर आर मैकेनाइजेशंस, तरीके हैं जिससे यू कैन से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, उनकी एस्पिरेशन एकदम राइट तरीके से, कोहेसिव तरीके से नहीं हो पाती है. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर हैज बीन गिवन अ हायर पावर स्टेटस. सेंटर के पास ऐसी पावर्स हैं जो कि एक कंसेशनरी मोड में वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है और वापस भी लेने की बात रखता है. बट एवरीथिंग शुड बी ड्यूली वेरीफाइड, कंडक्टेड एंड एप्लीकेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब्यूज ऑफ आर्टिकल 356 स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कस करने के लिए, एज आई सेड दैट इन 1975 क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया एंड इट वेंट ऑन टू ब्रिंग 38th and 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पढ़िएगा, जाके देखिए that how these amendments were actually making governor's decision, governor का कोई भी decision है या governor is going to issue an ordinance, यानी whenever the state assembly is not convened, then governor will be having a power to issue an ordinance. And but the top of it you can say वो ordinance जो issue होगा उसको नॉन जुडिशियल लेवल पे रखा गया, यानी कि वो जस्टिसिएबल नहीं होगा. एंड गवर्नर इज गोइंग टू एक्ट at behest of center. आज भी हम डेली पढ़ते हैं, we read about certain news item. For example, the governor of Maharashtra not cooperating with the present state government in certain ways, there is a friction. Then we read about that the governor of or you can say lieutenant governor of Delhi and the elected chief minister, they are having a lot of a tussle that who is actually having
or who is actually following the due process of law. Same is the case with the governor of Pondicherry. When the governor was there, the previous governor was there, then it was believed that the government was not really happy with the conduct, whereas the governor claimed कि मैंने सब कुछ by due process or law से ही किया है. So there are numerous examples where the role of governor becomes important. For example, in the recent elections in West Bengal and even the present times also, governor keep on you can say showing a positive light and activism which is criticized in an open manner by the state government, which claims that governor is going beyond its domain, governor is going beyond its courteous role, governor is not keeping the state government into interest, whereas central government asks governor to act. तो ये एक तरीके से गवर्नर जो है टूल बन गया, टूल इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा माना गया जब हम 38 या 42nd अमेंडमेंट को देखते हैं. इसीलिए कहा जाता है दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट वेंट ऑन टू इनलार्ज द स्कोप ऑफ इमरजेंसी. यानी इमरजेंसी तो हट गई, लेकिन इमरजेंसी जैसे तत्व यदि रहेंगे तो वो इमरजेंसी की फील कराएंगे और यू कैन से न्यू इमरजेंसी कंडीशंस इमर्ज होगी. दैट इज वाई एक अमेंडमेंट और किया गया, आर्टिकल 257A, क्योंकि आर्टिकल 256 एंड आर्टिकल 257 ये बताते हैं स्टेट और सेंटर के एक्ट्स को, और यदि उसके हिसाब से देखा जाए तो आर्टिकल 365 ये डिसाइड करता है कि सेंटर क्या एक्शन लेगा. सो दैट इज वाई 257A में इंसर्ट किया गया कि यूनियन कभी भी आर्म फोर्सेस स्टेट में भेज सकता है. In the recent times, I give you one example that in one of the states where all the opposition party MLAs they were given the central government protection. सारे के सारे MLAs को एक साथ प्रोटेक्शन दे दी गई. So the question arises, क्या उनको really live threat है? Question arises, have they approached the state government or have the state government apparatus have found कि उनको वाकई प्रॉब्लम क्या है, and then due steps which should be taken up by the state government they have not been taken. So such issues when taken to court then they get a due I should say enlightenment. लेकिन इससे पब्लिक का बस पैसा, पब्लिक का टाइम, जुडिशरी का कीमती समय जिन पेंडिंग केसेस पे जाना चाहिए उन पर नहीं जा पाता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस SR बोम्मई केस. एक जमाना था when BJP was in the opposition, when BJP used to cry that the all powerful mighty central government under Congress is actually behaving in the way presently opposition parties are saying the Modi government is behaving. So when Modi was chief minister, when Narendra Modi ji was chief minister, then he also used to criticize that federalism is in danger. Center has become a unilateral all engrossing power. So the practice of dismissing a state government blatantly was challenged and stopped by Supreme Court in 1994 through SR Bommai versus Union of India case. यानी SR Bommai जिनकी कर्नाटका गवर्नमेंट को सैक कर दिया गया था, it was successfully challenged in the court and then जो गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था उसमें ये प्रूव हुआ that center has continued to misuse the power of governor and it should not be done. So the first thing that any central power do when it comes to power is to change and to remove governors of the state and UT जो कि उनकी आइडियोलॉजी या उनके एजेंडे से फिट नहीं बैठते हैं, ऐसा पॉलिटिकली कहा जा सकता है. सो डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जैसा मैंने अभी कहा that same story continued since 2014, since NDA government came to power. It acted on the same lines, in the same manner like the way UPA was believed to have been acting or previously Congress was supposed to have been acting. So इससे नुकसान किसका हुआ? जनता का नुकसान हुआ. People's aspiration, people's dreams, the public services which must be at the prime center, governor must act as a facilitator, उसमें फिर friction आ जाता है and that friction definitely takes India as a cohesive state backward. जब आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की भी बात करते हो तो वो स्टेट जिसके अंदर ऑपोजिशन रूल पार्टी है, इट मे नॉट बी एक्टिंग और इट मे नॉट बी गिवन द ड्यू फ्री हैंड लाइक द वे कोई ऐसा गवर्नमेंट जो कि प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट है. सो आफ्टर SR Bommai case, most important another linked idea with the governor's position is Sarkaria Commission's recommendation.
व्हाट इट सेड, वही बात जो आपको और मुझे समझ में आती है भाई, एक्सट्रीम केसेस में, ओनली इन द एक्सट्रीम केसेस, क्या होता है एक्सट्रीम केस, द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी कैसे कही जाएगी? सपोज देयर आर राइट्स इन द स्टेट एंड द राइट्स आर proven to be not controlled, not managed and provoked by the state government. Suppose there is a health emergency and not due steps are being taken. Suppose there is human rights violation on a large scale and the state government is not listening to the center. Suppose there is an open violation of the constitution norms. इस केसेस में आप कहोगे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मानी जाती है. लॉ एंड ऑर्डर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट देन क्राइसिस जो भी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए बाय सेंटर एंड स्टेट टुगेदर. तो कौन करेगा, कौन करेगा? देयर कम्स द रोल ऑफ गवर्नर. दैट इज व्हाट सरकारिया कमीशन वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट. दैट अल्टरनेटिव सोचिए, सीधा आर्टिकल 356 का प्रयोग मत कीजिए, बिकॉज देन इट लूजेस इट्स सैंक्टिटी, इट लूजेस इट्स वैल्यू एंड ऑब्वियसली इट इज हार्मफुल फॉर मैच्योरिंग इंडियन डेमोक्रेसी. सो स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉपर टाइम में ड्यूली वॉर्न किया जाए, उन्हें इमीडिएट एक्शन से पहले देयर शुड बी ए रिपोर्ट कमिंग अप फ्रॉम द गवर्नर. स्पेसिफिक आइडियाज होने चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन होने चाहिए दैट व्हाट इज एक्चुअली इज नॉट कैरिंग आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द स्टेट वो लेनी चाहिए, सो दैट बोथ द साइड्स आर हर्ड इक्वली. हाउएवर, जुडिशरी हैव बीन प्लेइंग ए वेरी प्रोएक्टिव रोल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है. नाउ कमीशन ने रिकमेंड किया कौन होना चाहिए गवर्नर. गवर्नर आखिर बनना किसको चाहिए? सो द पर्सन शुड नॉट बी बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट, नहीं तो पार्टीजन हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा. पर्सन शुड नॉट बी बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी. Person should not be in the active public life. Person should not be having a particular ideology imposed on it. There have been governors in the recent past. For example, one of the governors of Northeast, वो जो है गवर्नर होने के बावजूद भी पोलराइज्ड, यानी कि एक धर्म या एक कम्युनिटी के अगेंस्ट या एक कम्युनिटी के फेवर में ट्वीट्स करते रहे हैं लगातार, which will provoke masses, which will incite sentiments. तो ऐसा गवर्नर का रोल नहीं चाहिए. गवर्नर मस्ट बी एक्टिंग जो कि एक कंस्ट्रक्टिव फैसिलिटेटर हो, घर के एक बुजुर्ग की तरह. ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. ही मस्ट बी एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल कोहेशन. दैट मीन्स अगर कोई नई गवर्नमेंट पावर में आती है एंड सपोज मेजॉरिटी इज नॉट देयर, देन द रोल ऑफ द गवर्नर इज टू फैसिलिटेट कि सबसे पहले लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए. There have been roles, for example, you must check out what happened in case of Arunachal Pradesh. Supreme Court had to intervene. What happened in case of Uttarakhand or Uttaranchal, when also Supreme Court had to intervene after Uttarakhand High Court. What happened in case of Karnataka Assembly. So apart from the speaker, which we are not talking right here, there have been role of governor also. Governor plays very very prominent role, and in case of UTs like Jammu and Kashmir, also the role of administrator who is equivalent to governor becomes very very important. So stability आएगी, clarity आएगी जब गवर्नर सेंटर के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह स्टेट को अपनी विजडम से प्रभावित करेगा और वो रोल प्ले करेगा जो कि उसका है. पर क्या रोल है देखते हैं. So Panchi Commission also came into picture. So SR Bommai case, then you have सरकारिया कमीशन. पंची कमीशन ने भी कहा कि देयर मस्ट बी फेवरेबल अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स कर दीजिए 355 और आर्टिकल 356 में. तो सेंटर को स्पेसिफिक जो ट्रबल एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट है या सम अदर स्टेट्स आर देयर, जहां लिमिटेड टाइम के लिए आप सेंटर का रोल लगा सके, लेकिन मिसयूज आर्टिकल का नहीं होना चाहिए. सो इट्स अ वेरी वेरी आई शुड से अनचार्टेड टेरिटरी. एकदम क्लैरिटी से आप नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा और ऐसा होना चाहिए, बट दैट इज हाउ फेलियर ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बाद ही ऐसा होना चाहिए, उसके पहले कोई ऐसे स्टेप नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मिलिटेंसी इन पंजाब फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज स्टेट, देन आल्सो सर्टेन एक्शंस वर टेकन इन दिस डायरेक्शन. सो पंची कमीशन
ने और भी लिटरल कंस्ट्रक्शन किया आर्टिकल 356(1) का. इट वाज सेइंग दैट इट विल रिड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स टू अ लाइसेंस डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच से एक दायरा बनाए, और अगर सेंटर को पूरी पावर दे दी जाएगी then it will be actually acting in a more authoritative and in a odd handed manner, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए उसका रोल सिर्फ रेक्टिफाई करने के लिए होना चाहिए. जो भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम हुई है उसको रेक्टिफाई करे, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, एंड उसी डायरेक्शन से कोशिश हो सरकार ना गिरे, कोशिश हो असेंबली सस्पेंडेड एनिमेटेड सस्पेंशन में ना आ जाए, कोशिश हो कि गवर्नर के रोल की नौबत ना आए. बिकॉज दीज काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शंस एक्चुअली, एज वी अंडरस्टैंड, दे टेक अ स्टेट मच बैकवर्ड. जिस टाइम में हम बात करते हैं दैट आवर स्टेट इकोनॉमीज मस्ट कम टुगेदर, आवर स्टेट मस्ट कम टुगेदर टू एक्ट एज अ व्हीकल फॉर इंडियाज 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ. In such consequences, fierce political contestation, many times it harms. So political party को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन political party is not India. Central government in power wants all states must be ruled by that party. It's a fancy, but then people's aspiration is prime. So, as Sir Bomey case, बहुत सारे differences लेके आया सेंटर और स्टेट में रोल, गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए. That is why governor position was put under judicial review. Judicial review. That means court will take note of what is happening, and court has come up with many guidelines also in this regard. Time and again it has been coming up with suggestions which are suggestions in nature. And पंची कमीशन ने तो ये भी बोला कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में देयर मस्ट बी द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. तो क्या आप देखते हैं ऐसा हो रहा है? एंड मेनी टाइम्स वी सी ऑल्सो दैट गवर्नर एक्टिंग विदाउट keeping chief minister into loophole. It announces something, it goes somewhere, it says something. क्या ऐसा होना वाजिब है आपके हिसाब से? क्या वो लाजमी है? क्या सोचते हैं आप? सोचिए और मुझे बताइए. So Panchi Commission reiterated what Sarkare Commission had said, that potential situation of political background, सारे के सारी possibilities को explore करो और जो है बहुत ध्यान से चीजों को करो. अगर outgoing ministry caretaker government की तरह रोल करती है कुछ टाइम के लिए, so वो कोई भी मेजर पॉलिसी इश्यूज नहीं ले सकती. एंड चाहे मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे करप्शन है, ऑल दीज आइडियाज मस्ट बी केप्ट असाइड, एंड गवर्नर शुड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, एंड देयर इज गवर्नर्स रोल, एंड इलेक्टोरेट ही डिसाइड करेंगे रादर देन मैनिपुलेशंस. इफ यू कैन रिकॉल, इन केस ऑफ महाराष्ट्र ओनली, oath to the chief minister was given in the morning when certain opposition political party leader joined, or you can say he proposed that he will be part of the government, and the governor gave them oath in the early morning only, and the government was not able to prove its majority within 24 to 48 hours or whatever it is. तो आप सोचिए गरिमा किसकी कम हुई? गरिमा हुई गवर्नर की पोजीशन की, महामहिम की जो पोजीशन है वो कम हुई, जो कि होनी नहीं चाहिए. सो सरकारी कमीशन ने एक टेन्योर की बात भी की 5 साल के लिए, और पॉलिटिकल फुटबॉल जिसे हम कहते हैं वो बनना बंद करें. एंड इट ऑल्सो प्रपोज्ड दैट वो प्रपोजल्स जो इम्पीच कर सकते हैं गवर्नर को, सिमिलर टू द प्रेसिडेंट व्हाट इज डन बाय द पार्लियामेंट, ऐसा कुछ जो प्रोविजंस हैं वो रिमूव हो जाने चाहिए. रिसेंटली वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स ऑल्सो रिमार्क्ड कि गवर्नर पे नोट रखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे ही लेकिन गवर्नर के पोस्ट से वो हटेंगे, then those actions, those FIRs which are filed against the governor, they will come into action. So पंची कमीशन ने कहा डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर के ऊपर, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए विद द ड्यू एडवाइस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर. विदाउट चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के गवर्नर नहीं एक्ट करना चाहिए. देयर आर एक्सेप्शंस जहां पे वो अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करेगा, लेकिन वो सब भी जुडिशियल नॉर्म्स, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू तहत हो चुका है. दैट जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ही थिंक्स फिट एंड इन एक्सेस ऑफ हिज डिस्क्रिशन. इसमें भी बात हुई है कि वो जो है जो भी है वो जुडिशियल परव्यू सेट नॉर्म्स के भीतर ही काम होना चाहिए.
देन जैसा कि मैंने कहा, लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस को बुलाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, पोस्ट इलेक्टोरल कोएलिशन को भी एथिकल नॉर्म्स की तरह फॉलो करे, हॉर्स ट्रेडिंग और डिफेक्शंस को इनकरेज ना करे, एंड जैसे जैसे हो सके हंग असेंबली के केस में, हंग हाउस के केस में इलेक्टोरल नॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स और सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, गरिमा को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के, देन ओनली इट शुड एक्ट। सो हमने बात की गवर्नर की। आपने देखा है गवर्नर बहुत जगह डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, गवर्नर बहुत जगह कर्टसी कॉल्स भी करते हैं, गवर्नर कई बहुत जगह ह्यूमन राइट्स की बात भी उठाते हैं, गवर्नर बहुत जगह एग्रीकल्चर, ट्रेड, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी, यानी बहुत सारे आयाम हैं जहां गवर्नर का रोल पूरे स्टेट के लिए आता है। द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि कंट्रोवर्शियल पोजीशन नहीं है, कंट्रोवर्शियल बना दी गई है। इट शुड बी ए लिबरल एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके द्वारा हम पाते हैं, जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि क्या आखिर में रोल है गवर्नर का। सो आप पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में जो भी आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े या जो भी आपने सुना, सोच के देखिएगा कौन से कमेंट्स को तवज्जो दी गई। क्या रियली में वो कमेंट्स से इंपॉर्टेंट थे? क्या ऐसे गवर्नर की एक्टिविटीज नहीं है जो वाकई बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंटल बेस्ड हैं? सो पॉलिटिकल प्रिज्म के अंदर ही काम करना है, लेकिन प्रिज्म की कम से कम रोशनी को तो क्लियर रखिए। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स को चेंज करने से नहीं होगा, हमें इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को आगे लेके चलना है। देन ओनली इंडियन डेमोक्रेसी will be a role model for rest of the world, and the position of the governor for which it was created, it is so important, as I told you, that it is the linchpin between the center and the state. For any doubts or any clarification, kindly get back any moment. Wishing you all the best. बिना पढ़े कोई सहारा नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। So we thank you all from Ansarkari. See you soon. Thank you very much.